Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students, and today I am taking the further part from the topic final accounts with adjustments. In last video I explained 5 adjustments from this chapter. Today I am taking the next 3 adjustments from the same chapter, and if you have not watched my earlier video, I will share the link in the description box so you can watch it and learn the adjustment which are quite important, and all these adjustments come together in one numerical. So I can say ki you can prepare all the adjustments in a proper manner, because if one adjustment gets wrong you will not get the correct answer. So students, without wasting time, let's start. So अब हम आगे चलते हुए I am beginning with the next adjustment. So in my previous video I have explained you the first adjustment of closing stock. Then I explained outstanding expenses, then prepaid expenses, and then accrued income and income received in advance. So they are the basic adjustments which are there in most of the questions, okay, or I can say in every question. तो आपको वो वाली एडजस्टमेंट्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां एरर कर देंगे तो आप आगे के क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो इफेक्ट होगा. ओके, सो फॉर दिस रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर मैनर. सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं. Now I am taking the sixth adjustment. After those 5 adjustment, now sixth adjustment is adjustment of depreciation. Now you are familiar with the word depreciation. What is depreciation? That is the, you can say, wear and tear value of the fixed asset. जो भी आपके fixed asset है, like plant, machinery, vehicle, furniture, building, etc. After the passage of time, or we can say after a certain time period use, their value decreases. जो उनकी वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और वो डेप्रिशिएट होने लगते हैं, और उसी को हम बोलते हैं वियर एंड टीयर. यानी उनके कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं, कुछ घिस जाते हैं, लाइक दिस. तो उसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? वियर एंड टीयर वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, which is called as depreciation. So depreciation is charged on fixed tangible asset. Okay, tangible जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, they are the tangible assets. So अगर आपको एक percentage, fixed percentage is given in the adjustment, although because I am talking here only about adjustment, तो जो भी आपको एक percentage adjustment के अंदर दी होगी, आपने उसको calculate करना है from the given asset value. लाइक अगर आपकी एसेट की वैल्यू 1 लाख है और उस पर 10% आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख इंटू 10/100, दैट मीन्स उसका 10% आप कैलकुलेट करेंगे. सो वो 10% जो अमाउंट होगा, दैट विल बी शोन एट 2 places. ओके, so I am taking the accounting treatment mainly. So if the depreciation percentage is given आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ओके, आपको एक परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिक्स भी दिया हो सकता है, लाइक 5000 डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, तो आपका वो फिक्स अमाउंट हो गया. तो अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो आपने पहले तो कैलकुलेट कर लेना है. अगर परसेंटेज दिया लाइक 10%, 15%, 20%, और आपको सबको परसेंटेजेस निकालना आता है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, तो जो भी रेट दिया होगा वो लेंगे. उसके बाद उस अमाउंट को, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, दैट इज एन एक्सपेंस और यू कैन से अ लॉस, सो इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, एज एन एक्सपेंस ओनली. तो आप इसको कैसे शो करेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. उसके बाद आप उसको रिलेटेड एसेट से डिडक्ट करेंगे इन द बैलेंस शीट एसेट साइड. तो एसेट साइड के अंदर जो भी एसेट है, लाइक अगर हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन आपको दी है, तो जो डेप्रिसिएशन आपने 5000, 7000 या 6000 जो भी निकाला है अमाउंट, वो आप फर्नीचर के अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से डेप्रिसिएशन वैल्यू लेस कर देंगे. ओके, अगर वो आपका 50,000 था, 5,000 उस पर डेप्रिसिएशन थी, तो 50,000 माइनस 5,000 विल कम 45,000 इन द आउटर कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, तो उसको आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में एसेट में से डिडक्ट कर देंगे.
तो जिस भी एसेट की आप डेप्रिसिएशन लेंगे, लाइक अगर आप प्लांट एंड मशीनरी की ले रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी से डिडक्ट करेंगे, फर्नीचर की ले रहे हैं तो फर्नीचर से, बिल्डिंग की ले रहे हैं तो बिल्डिंग से, कंप्यूटर की ले रहे हैं तो कंप्यूटर, व्हीकल है तो व्हीकल से। क्लियर है? बट समटाइम इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस ऑल्सो। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में डेप्रिसिएशन हेड इज गिवन, सो आपने उसको एक ही जगह दिखाना है, क्योंकि सेम कंसेप्ट, अगर आपका कोई भी अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया है वो दो जगह पे आएगा, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो एक ही जगह आएगा। तो ये रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। सो अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का अमाउंट, तो आप उसको पी एंड एल के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन करके शो कर देंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि आप उसको फिर बैलेंस शीट के उसमें से डिडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, अगर वो अंदर दिया तो एक ही जगह दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच आई एम टेकिंग टुडे इज एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इज अ लॉस, ये आपको सबको मालूम है। तो बैड डेब्ट का जो भी अमाउंट है वो डेटर्स के अमाउंट में से क्या होना है? लेस होना है, या ये लॉस है। जो डेटर्स हमें रिसीव होने थे, नाउ दे आर नॉट बीन रिसीव्ड, सो इसको आप लॉस की तरह ही ट्रीट करेंगे। सो अगर तो ये ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में दिया हुआ है, सो इट विल ओनली बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट थिंग, अगर तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स का हेड दिया हुआ है, तो आप उसको कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू बैड डेब्ट्स करके शो करेंगे। ओके, बट इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो उस वाले बैड डेब्ट्स को हम क्या बोलते हैं? फर्दर बैड डेब्ट्स। यानी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो नॉर्मल बैड डेब्ट्स हो गए। ओके, एंड जो आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा या आप ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा, दे विल बी ट्रीटेड एज फर्दर बैड डेब्ट्स। सो वो आपको दो जगह दिखाने हैं। वन, you will show it in the debit side of profit and loss account. Okay, and second आप कहां शो करेंगे? You will deduct it from the debtors in the asset side of balance sheet. बैलेंस शीट में एसेट साइड में जहां आप डेटर्स दिखाते हैं, आप डेटर्स में से उसको डिडक्ट कर देंगे। क्लियर? और अगर आपको दोनों दिए हुए हैं, बिकॉज इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपको दोनों दिए होते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ है बैड डेब्ट्स और एक आपको एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है, तो इन दैट कंडीशन आपने क्या करना है? जो ट्रायल बैलेंस वाला है वो आपने सिर्फ पी एंड एल में दिखाना है। तो आप क्या लिखेंगे? टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स। तो जो फर्दर बैड डेब्ट्स हैं, जो एडजस्टमेंट वाले हैं, वो आप उसमें एड अप करके प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही हेड शो कर देंगे। लेकिन बैलेंस शीट में आप सिर्फ डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स डिडक्ट करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेब्ट्स हैं वो डिडक्ट नहीं होंगे। सो होप ये मैंने क्लियर कर दिया है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपको बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं तो आपको एक ही जगह शो करना है, दैट इज डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। और अगर वो बाहर दिए हुए हैं तो उनको आपने दो जगह दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इन द एसेट्स बैलेंस शीट। ओके, और अगर दोनों जगह दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में यू विल टेक टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स, तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। और एसेट्स में से, डेटर्स में से सिर्फ फर्दर बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट में दिए हैं सिर्फ वो डिडक्ट होंगे। सो होप मैंने ये क्लियर कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज योर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। नाउ व्हाट इज प्रोविजन? Provision, you can say, a separate amount kept aside for anticipated loss. यानी आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि मे बी 5 और 7% लॉस या बैड डेब्ट्स हो सकते हैं। सो फॉर दैट बिजनेस क्रिएट्स अ सेपरेट प्रोविजन, ओके, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अगर आपको याद है, प्रिंसिपल्स में मैंने ये बात एक्सप्लेन की हुई है। फॉर टेकिंग द बिजनेस इन अ सेफ मैनर, व्हाट बिजनेस डज, अगर आपको बिजनेस को लग रहा है कि मे बी लॉस हो सकता है, मे बी बैड डेब्ट्स हो सकते हैं इन द फ्यूचर, इन द ईयर, नेक्स्ट ईयर, सो वो क्या करते हैं? एक प्रोविजन क्रिएट पहले से ही करके रख देते हैं कि अगर लॉस हुआ, अगर बैड डेब्ट्स हो गए तो उसी प्रोविजन से वो रिकवर हो जाएंगे। ओके, सो अगले साल के लॉस, प्रॉफिट या लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका। सो फॉर दिस रीजन दे क्रिएट अ प्रोविजन। अब इसके लिए आपको एक फिक्स परसेंटेज कहां दी होती है? इन द एडजस्टमेंट।
ओके, सो आपने इसमें क्या लेना है, अगर जो प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ओल्ड प्रोविजन. क्लियर? और इसके बाद जो प्रोविजन आपको एडजस्टमेंट में दिया है, यानी आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है, उसको हम बोलेंगे न्यू प्रोविजन. ओके, वो क्या कहलाएगा, न्यू प्रोविजन. तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. Provision given inside the trial balance is old provision. Provision given outside the trial balance is new provision. One thing. इसके बाद हम आते हैं न्यू प्रोविजन जो कैलकुलेट होता है वो डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट होता है. लाइक इफ इट इज गिवन 5%, तो आप डेटर्स के ऊपर 5% उसको कैलकुलेट करेंगे. क्लियर? जो डेटर्स का अमाउंट है, लाइक अगर 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर 5%, और अगर 1,10,000 है तो 1,10,000 के ऊपर 5%, लाइक दिस. ओके, जो भी परसेंटेज दी होगी आप वो कैलकुलेट करेंगे. लेकिन उसको एक चीज ध्यान में रखेंगे, तो जो आपके फर्दर बैड डेब्ट्स गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी जिनको हमने फर्दर बैड डेब्ट्स बोला है, अगर वो दिए हुए हैं साथ में एडजस्टमेंट में, तो पहले आप डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स डिडक्ट करेंगे, फिर न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है? लाइक अगर आपके फर्दर बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं 5,000 एंड न्यू प्रोविजन इज गिवन 5%. ओके, सो आपने क्या करना है, डेटर्स में से पहले 5,000 डिडक्ट कर देना है. क्लियर? लाइक 1,05,000 इज गिवन, तो 1,05,000 में से 5 आपने फर्दर बैड डेब्ट्स डिडक्ट कर दिए. अब 1 लाख के ऊपर आप 5% या 10% कैलकुलेट करेंगे एज न्यू प्रोविजन. ओके, सो ये हमेशा आपका बैड डेब्ट्स, जो फर्दर बैड डेब्ट, जो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, उनको डिडक्ट करने के बाद ही आप प्रोविजन को कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है? सो तब आपने क्या करना है, जो भी बैड डेब्ट्स गिवे हुए आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस वो आप उसमें से डिडक्ट करेंगे, उसके बाद आप न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे. अब अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, लाइक ओल्ड प्रोविजन इज ऑल्सो गिवन, न्यू प्रोविजन इज ऑल्सो गिवन, फर्दर बैड डेब्ट्स आर ऑल्सो गिवन एंड बैड डेब्ट्स आर ऑल्सो गिवन, क्योंकि ये एंड ये एडजस्टमेंट दोनों एक साथ भी आ सकती है, यानी पूरी की पूरी एडजस्टमेंट टुगेदर आ सकती है. सो आपके पास क्या हो गए, 4 हेड्स हो गए. वन इज योर बैड डेब्ट्स which is given inside the trial balance. Another is your further bad debts which are given outside the trial balance. फिर है आपके पास न्यू प्रोविजन, जो आपको न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है, एंड उसके बाद है आपको ओल्ड प्रोविजन, वो भी दिया हुआ है इन द ट्रायल बैलेंस. ओके, तो तब आपकी फुल एडजस्टमेंट क्या बनेगी. प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको कैसे शो करेंगे, 2 बैड डेब्ट्स, पहला हेड लेंगे बैड डेब्ट जो कि ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं. ओके, एड फर्दर बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं. क्लियर है? पहले दोनों बैड डेब्ट्स आ गए, एक पहले ट्रायल बैलेंस वाले फिर एडजस्टमेंट वाले. आफ्टर दैट एड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. अब फिर न्यू प्रोविजन आप एड अप करेंगे, तो न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करके ऐड करेंगे. तो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू 5 और 10 और वॉट एवर रेट इज गिवन अपॉन 100. क्लियर है? तो यानी जो भी आपके फर्दर बैड डेब्ट्स हैं उनको पहले डेटर से लेस कर दो, उसके बाद जो डेटर बचेंगे, एक्चुअल में गुड डेटर्स जो बचेंगे, उनके ऊपर आप न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे. तो वो न्यू प्रोविजन जो आएगा आपका वो आप यहां ऐड करेंगे, उसके बाद में लेस ओल्ड प्रोविजन, और ओल्ड प्रोविजन को लेस करके जो अमाउंट बचेगा वो आप बाहर दिखाएंगे. क्लियर है? यहां डेटर्स किसी ने नहीं शो करने हैं. बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन. क्लियर है? यानी ओल्ड प्रोविजन आपका डिडक्ट होता है, और वो अगर आप देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में वो आपके क्रेडिट साइड में दिया होता है, सो इट विल बी डिडक्टेड. ओके, और इसको बैलेंस शीट में आप कैसे शो करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस वाली चीजें नहीं आएंगी दोनों, ना ही ओल्ड प्रोविजन आएगा और ना ही बैड डेब्ट्स विच आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, दे विल नॉट कम. सो आपकी एडजस्टमेंट क्या बनेगी, डेटर्स का जो भी अमाउंट है वो आप लिखेंगे, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, जो फर्दर बैड डेब्ट्स आपके एडजस्टमेंट में दिए हैं वो आप लेस कर देंगे, एंड लेस न्यू प्रोविजन, और जो न्यू प्रोविजन आपने क्रिएट किया है ड्यूरिंग द ईयर वो भी आप लेस कर देंगे. तो ये दो चीजें लेस होंगी डेटर्स में से, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स विल कम इन द आउटर अमाउंट कॉलम ऑफ एसेट. ठीक है, तो एसेट साइड में आप उसको शो कर देंगे. इज इट क्लियर? तो ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है. और इसके बाद एक कंडीशन और आती है, if old provision is greater than the
this total sum of bad debts, further bad debts and new provision. ओके कि ओल्ड प्रोविजन जो आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो इतना ज्यादा है कि वो इन तीनों के एडिशन के बाद भी आपके पास बच रहा है, या आप कह सकते हैं कि इसका आंसर अगर आपका माइनस में आ रहा है तो ओके, सो दैट फुल एडजस्टमेंट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तब आप क्या करेंगे, यानी आपने पूरा कैलकुलेट करा और लास्ट में निकाला तो आपका आंसर माइनस में आ रहा है, यानी जो आपका ओल्ड प्रोविजन है वो बहुत ज्यादा है. ओके, लाइक इट इज 20,000 और इन सब का टोटल जो आ रहा है वो 12,000, 13,000 या 18,000 आ रहा है. तो जो 2,000 एक्स्ट्रा है वो आपका माइनस में हो जा रहा है क्योंकि ओल्ड प्रोविजन इज ग्रेटर. तो इफ योर आंसर इज कमिंग इन माइनस तो आप क्या करेंगे, इस फुल के ऊपर एक क्रॉस लगा के एक लाइन डाल देंगे और फुल एडजस्टमेंट दोबारा से आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो करेंगे. ओके, क्योंकि जो एक्सेस ओल्ड प्रोविजन है वो 2,000 जो है वो अमाउंट कहां आना है, इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो इसको ध्यान रखेंगे, लेकिन ये वाली एडजस्टमेंट बिल्कुल सेम रहेगी इन द बैलेंस शीट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ओके, सो ओनली आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में ना आके वो क्रेडिट में आ जाएगा इफ ओल्ड प्रोविजन इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ ऑल थ्री आइटम्स. ओके, सो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एंड दिस एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यही एक कंफ्यूजन वाली एडजस्टमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. सो आप इसको एक बारी फिर से समझ के अच्छे से और क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड गो थ्रू द बुक ऑल्सो. एंड स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन. लास्ट में एक लाइन मैंने और ली है, इफ बैड डेब्ट रिकवर्ड इज गिवन. सो उसको आपने एक ही जगह दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में. बैड डेब्ट रिकवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. बस क्लियर है. सो ये आपका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट वाला जो आज का टॉपिक था वो मैंने ले लिया है. सो होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड स्टूडेंट्स कीप सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एडजस्टमेंट एंड स्टिल if some queries are there you can ask and see you in my next video. Till then, bye bye.